Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and after the completions of the mid semester, this is the first lecture of material science and metallurgy. So we can start the one another new chapter from our syllabus, which is the phase and phase equilibrium diagram, right? In the previous series of the chapter, before the starting of the mid semester examinations, we tried to discuss about the solidifications of the metals and the theory of alloys, right? So during that chapter, we try to understand about the solidifications of the metals, how the metal which is react during the transformations of that phase, right? Which is the solid phase to the liquid phase to the solid phase, and how the metal is react during that period. So this is the very close chapter to the previous chapter of the solidifications of the metals, right, and the theory of alloys. This chapter, which is the phase and the phase diagram, how the phase transformation is occur and what is happening during the phase transformation, what is actually metallurgically occurs during the phase transformation. So we can study the different phase diagram for different metals during this chapter. So most probably this chapter is the shortest chapter of this syllabus, and most probably it will be complete during this week. So this is very small chapters. In this chapter we try to study the unary and the binary phase diagrams, then the different reactions during the phase diagram, which is the eutectic, eutectoid, peritectoid, right, and the non-equilibrium diagram. So these are the content of the syllabus as per the GTU. So we will try to discuss and try to understand about the basic things about the phase diagrams and the phase rules. So I think we are very much aware with the things what is happening during the Gibbs rule, right? So ये चीज़ जो है वो हमें बेसिकली ये चीज़ हमें पता थी कि गिब्स रूल जो है हमें क्या कहना चाहता है यूनरी। एक्चुअली उसके साथ हमने लीवर रूल जो है वो भी एकदम समझने की कोशिश की थी। तो वो चीज़ जो है वो रूल जो है वो हमें सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द मेटल्स के दौरान जो हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा था, राइट? सो आज जो है वो हमें आगे के फॉर्म के ऊपर जाते हुए हमें ये चीज़ जो है वो आगे स्टडी करनी पड़ेगी कि सॉलिडिफिकेशंस में एक्चुअली जो है वो होता क्या है। तो फेज़ डायग्राम जो है वो हमें फेज़ ट्रांसफॉर्मेशंस के मेटलर्जिकल फंडामेंटल ज़्यादा तरीके से क्लोजली हमें सिखाता है। सो वी स्टार्ट ऑन द डिस्कशंस ऑन द फेज डायग्राम। नाउ व्हाट इज़ द फेज डायग्राम? ए फेज डायग्राम इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट, यानी ये जो है वो एक तरीके का चार्ट है, राइट, विच इज़ यूज टू शो द कंडीशंस। ये जो है वो हमें एक तरीके से क्या चीज़ बताती है, एक तरीके से कंडीशंस बताती है एट विच a thermodynamic distinct phases can occur at the equilibrium. So a phase diagram is a type of chart that which is used to show the conditions. ये जो है वो कुछ कंडीशंस दिखाने के लिए ये चार्ट जो है वो यूज़ होता है। कैसी कंडीशंस? एट विच थर्मोडाइनमिक डिस्टिंक्ट फेजेस कैन अकर एट द इक्विलिब्रियम, राइट? कि ये जो चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो अलग अलग कंडीशंस बताता है। किस कंडीशंस के ऊपर? यानी किस थर्मोडाइनेमिक कंडीशंस के ऊपर अलग अलग डिस्टिंक्ट्स, यानी कैसे कैसे फेज जो है वो डेवलप्ड होते हैं एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल कंडीशंस के ऊपर। तो यानी बेसिकली, और मैं आपको थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश करूँ तो फेज डायग्राम एक ऐसा चार्ट है जो अलग अलग कंडीशंस हमें इस चार्ट से पता चल सकती है, जो कंडीशंस हमें क्या बताती है कि डिफरेंट थर्मोडाइनमिक कंडीशंस के ऊपर कैसे डिस्टिंक्ट फेजेस जो है वो एक स्टेबल फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। इट कन्वीनियंटली एंड कंसाइजली
displays the control of the phase structure of a particular systems. ये जो है वो एक तरीके से हमें कन्वीनियंटली और कंसाइजली एक तरीके के एक प्रिसाइज तरीके से एक हमें शोकेस करता है, डिस्प्ले करता है द कंट्रोल ऑफ द फेज स्ट्रक्चर, जिससे जो है वो एक फेज स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल फेज स्ट्रक्चर हमें दिख सकता है एक पर्टिकुलर सिस्टम का। वो सिस्टम जो है वो एल्यूमिनियम स्टील हो सकती है, मैंगनीज एल्यूमिनियम हो सकती है, यानी डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स जो है उस वो सिस्टम का यानी सिस्टम दैट मीन्स द टू मेटल्स एंड इट्स हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशंस, राइट। अगर हम कोई मेटल है या फिर एलॉयज है उसको हम लोग हीट करते हैं तो फिर उसके अंदर सपोज प्योर मेटल है तो प्योर मेटल, एलॉयज है तो एलॉयज, उस हीटिंग कंडीशंस के दौरान और कूलिंग कंडीशंस के दौरान जो फेज जो है वो किस तरीके से वो डेवलप्ड होते हैं वो हमें कन्वीनियंटली ये फेज डायग्राम से बता सकता है। The three controllable parameters that will affect the phase structure are temperature, pressures and compositions. यानी ऐसे तीन जो है वो कंट्रोलेबल पैरामीटर्स है, वो जो है वो फेज डायग्राम को अफेक्ट करते हैं। कौन से तीन फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? एक अफेक्ट करता है टेम्परेचर, दूसरा अफेक्ट करता है प्रेशर्स एंड तीसरा अफेक्ट करता है उसका कंपोजिशन, उस मेटल का कंपोजिशन। So here you can see that the temperature composition phase diagram, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है एक छोटा सा ग्राफ जो है वो टेम्परेचर जो कि y एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया गया है और x एक्सिस के ऊपर जो है उसका कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट मेटल्स वो उसको प्लॉट किया है। तो वो दोनों के कंपोजिशन से वो दोनों के मिक्सचर्स एक साथ जो है वो हीटिंग और कूलिंग कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर के बढ़ने से और टेम्परेचर के घटने से क्या क्या जो है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको आपको अफेक्ट क्रिएट होगा, वो यहाँ से इस डायग्राम के साथ देखा जा सकता है, राइट। ये चीज़ हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा छोटा सा डायग्राम है विच इज़ द प्रेशर वर्सेस द टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसके साथ जो है वो टेम्परेचर के अपोजिशंस में मेटल किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करती है वो यहाँ पे आपको पता चल सकता है। तो ये जो तीन डिफरेंट पैरामीटर्स है वो एक्चुअली फेज डायग्राम के साथ जो है वो उसको रियली अफेक्टिंग पैरामीटर्स हैं विच इज़ दी टेम्परेचर, pressures and the compositions. Now what is the significance? क्या उसका एक इतना इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस क्यों है फेज डायग्राम का, राइट? टू शो द फेजेस आर प्रेजेंट्स एट द डिफरेंट कंपोजिशंस, राइट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कि ये जो है वो हमें क्या शोकेस करता है, ये जो है वो हमें डिफरेंट फेजेस जो है वो शोकेस करता है किस पे, यानी डिफरेंट विच इज़ टू शो द phases are present at different compositions, right? कैसे compositions के ऊपर, कैसे अलग अलग compositions के ऊपर different phases जो है वो create होते हैं and different temperature के ऊपर जो है वो कैसे phases जो है वो developed होते हैं under slow cooling equilibrium condition। जिस तरीके से हीटिंग से हम लोग कूलिंग करते आते हैं उस डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ दैट कंपोजिशंस किस तरीके से डिफरेंट फेजेस जो है वो डेवलप्ड होते हैं वो हमें इस फेज डायग्राम से पता चल सकता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द इक्विलिब्रियम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट कंपाउंड्स इन दी अनदर। यहाँ से जो है वो एक चीज़ वो भी हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ यहाँ पता चल सकती है कि एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल के अंदर किस कंडीशंस के ऊपर जो है, किस टेम्परेचर लिमिट के ऊपर, किस प्रेशर लिमिट के ऊपर, किस कंपोजिशंस के अंदर जो है वो आसानी से दूसरे मटेरियल्स के अंदर जो है वो इजीली जो है वो मिक्स हो सकते हैं। यानी दैट इज इंडिकेट द इक्विलिब्रियम सॉलिड सॉल्युबिलिटी कंडीशंस। एक ऐसी कंडीशंस हमें ये डायग्राम से पता चल सकती है कि जहाँ पे एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल्स के अंदर इजीली जो है एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड इजीली वहाँ पे सॉल्युबल हो सकता है।
That is the second significance. The third significance of the phase diagram, which is to indicate the temperature at which an alloy is start to solidifies and the range of the solidification. यहाँ से हमें ये थर्ड चीज़ ये पता चल सकती है कि किस टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर जो है वो एलॉयज जो है वो अपना सॉलिडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और किस रेंज के ऊपर उसका सॉलिडिफिकेशंस होता है, राइट. एंड द फोर्थ which is to indicate the temperature at which the different phases will start to melt. किस टेम्परेचर और किस कंडीशंस टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर जो है वो ये इसके जो फेजेस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं. द अमाउंट ऑफ ईच फेजेस इन द टू फेज मिक्सचर्स कैन बी ऑब्टेन. कहाँ पे ऐसे दो फेजेस के मिक्सचर जो है वो हमें मिल सकते हैं, ये भी जो है वो हमें फेज डायग्राम से जो है वो पता चल सकता है. तो फेज डायग्राम्स, अब इसके क्लासिफिकेशंस की ओर चलते हैं. तो क्लासिफिकेशंस की ओर जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर द फेज डायग्राम आर क्लासिफाइड विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम. यानी जो फेज डायग्राम है वो काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर जो है उसका क्लासिफिकेशंस जो है वो कंपोनेंट के ऊपर इसका क्लासिफिकेशंस हो सकता है. पर यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट क्लासिफिकेशन विच इज़ अबाउट द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम दैट इज हैव एज ए यूनरी डायग्राम. जिसके अंदर सिंगल कंपोनेंट है उसको यूनरी डायग्राम जो है, यूनरी फेज डायग्राम जो है वो बोला जाता है. जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, राइट. द टू कंपोनेंट सिस्टम which is have as a designated as a binary diagram or so on. और उसको जिसके अंदर जिस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट है उस सिस्टम को जो है वो बाइनरी डायग्राम जो है वो बोला जाता है. नाउ व्हाट इज़ द एग्जाम्पल्स. सो अब अगर सपोज मुझे एग्जाम्पल देना है तो कैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है इमेज के अंदर मैंने टेम्परेचर वर्सेस जो है वो उसके कंपोजिशन का डायग्राम जो है वो हमने प्लॉट किया है. वाई एक्सिस के ऊपर मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट उसके कंपोजिशन. अब कंपोजिशन किसके लिए है, तो कंपोजिशंस के अंदर मैंने दो मेटल्स लिए विच इज़ द कॉपर एंड निकल. इस दोनों के यानी आप देखिए कि नीचे की साइड जो है वो मैंने कंपोजिशंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट निकल कंडीशंस मैंने ऊपर नीचे प्लॉट किए और ऊपर की साइड जो है वो मैंने प्लॉट किए मैंने निकल परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस ऑफ दी निकल्स. तो किस कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे दो रेड लाइंस जो है वो जैसे जॉइंट होती है ना, ऐसे एक तरीके से दो आर्क जैसा दिख रहा है जो एक एंड पे ऊपर जॉइंट है. तो इसके अंदर जो है वो आपका दो जो है वो फेजेस दिख रहा है, राइट. तो ऊपर का भाग जो है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो कॉपर और निकल जो है वो धीरे धीरे एक टेम्परेचर के अंदर जो है वो आप देख लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 1500 के थोड़ा नीचे यानी 1453 के ऊपर जो है वो एकदम लिक्विड कंडीशंस के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. सॉलिड टू लिक्विड उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो उसका कंपोजिशंस आप देख लीजिए, जैसे कंपोजिशन चेंज होता जाएगा तो एक फेज ऐसा आएगा कि 1300 डिग्री के आसपास जो है उसका एक लाइन जो होगा ऊपर का जो लाइन है विच इज़ डेजिग्नेटेड एज अ लिक्विडियस लाइन. नीचे का जो लाइन है रेड लाइन उसको जो है वो हमें सॉलिडियस लाइन से हमें पहचाना जाता है. और उसके बीच जो है विच इज़ द सॉलिड विच इज़ द S+L विच इज़ द सॉलिड प्लस लिक्विड. ऐसा यहाँ पे उसके बीच उस टेम्परेचर रेंज के बीच ऐसी एक कंडीशंस होती है, ना तो मेटल जो है वो पूरा लिक्विड होता है ना तो पूरा सॉलिड होता है. तो उसको वो एक मिक्सचर टाइप्स सॉलिडियस टाइप्स ऑफ स्लरी टाइप ऑफ मिक्सचर्स बोला जाता है, राइट. और दूसरा जो एग्जाम है तो ये जो एग्जाम्पल था जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, कॉपर भी था निकल था, तो इस तरीके का जो डायग्राम था वो उसको बाइनरी फेज डायग्राम जो है वो बोला जाता है. अब दूसरा एग्जाम्पल विच इज़ द CO2 यानी उसका CO2 का एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक ही कंपोनेंट है. तो उसको मैंने प्लॉट किया है द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, राइट. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो
किस तरीके से प्रेशर का जो है वो टेम्परेचर के साथ वो रिएक्ट करता जाएगा, तो वो हमें बताता है कैसे कैसे उसके फेज जो है वो ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तो वो हमें जो बताता है, यहाँ पे कंपोनेंट एक ही है, इसलिए इसको यूनरी डायग्राम जो है वो यूनरी फेज डायग्राम जो है वो बोला जाता है। नाउ अब हम लोग जो है वो बाइनरी फेज डायग्राम जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो आपको दिख रहा है, यानी वो जो एग्जांपल हमने अभी अभी पढ़ा था वो आपको एग्जांपल, यही एग्जांपल लिक्विडियस लाइन आपको दिख रही है, सॉलिडियस लाइन आपको दिख रही है। एक टेम्परेचर लिमिट यानी 1453 1453 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है उसका जो लाइन जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है वो मेटल जो है वो पूरा लिक्विड हो जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, तो कैसे कैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होता है ये हम बाइनरी फेज डायग्राम से यहाँ पता कर सकते हैं। एक कॉमन फेज डायग्राम्स इन विच द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, यहाँ पे जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया है। दो कंडीशंस हमने यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की है, विच इज़ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स, वेयर द टेम्परेचर एंड द कंपोजिशंस आर द kept, which is the variable parameters जो वेरी हो सकते हैं। This represents the relationship between the temperatures and the compositions of the phases। यहाँ पे जो है एक रिलेशनशिप हमें ये डायग्राम जो है बता सकता है किसके बीच, यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच ऑफ द फेजेस एट विच इक्विलिब्रियम कंडीशंस विच इन्फ्लुएंसेस द माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ द एलॉयज, जो है वो अलग अलग जो है वो कंडीशंस के ऊपर अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है इस एलॉयज के हमें यहाँ पे मिलते हैं। मैनी माइक्रोस्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम द फेज ट्रांसफॉर्मेशंस आइदर इट टू बी द ट्रांजिशंस ऑफ द वन फेज इनटू द अनदर फेज, यानी काफ़ी माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है वो ऐसे होते हैं कि जो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से हमें यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि एक फेज में से दूसरे फेज का ट्रांसफॉर्मेशंस होना, यानी लिक्विड में से धीरे धीरे हम लिक्विड प्लस सॉलिड या फिर सॉलिड की कंडीशंस में जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स है वो चेंज होते जाएंगे। एंड विच इज डिसअपियर्स ऑफ द फेज विच डू अकर ऑन एल्टरिंग दी टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर के साथ जैसे चेंज होता जाएगा और उसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज होता जाएगा। एक कॉमन एग्जांपल फॉर द ए बाइनरी आइसोफोरस एलॉयज विच इज द कॉपर्स एंड निकल सिस्टम, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। द स्टडी ऑफ दिस डायग्राम वुड एनेबल अस टू प्रिडिक्ट द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द इक्विलिब्रियम्स और ए नॉन इक्विलिब्रियम माइक्रोस्ट्रक्चर। इस डायग्राम के हेल्प से जो है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशंस, किस तरीके से किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपका पूरा सॉलिडिफिकेशंस हो रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है यहाँ पे कि द नो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन द कूलिंग अंटिल इट इज़ रिएक्ट टू द पॉइंट बी, जहाँ तक जो है वो पॉइंट बी यानी पूरे लिक्विडियस कंडीशंस के ऊपर नहीं पहुँच जाता तब तक उसके अंदर माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस होते नहीं हैं। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा टेम्परेचर को नीचे आएंगे, राइट, तब वहाँ पे जो है वो यानी आप देखिए जो पॉइंट ए टू बी जो है वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो निकल का प्रपोर्शंस है, कंपोजिशन है, वो 35% निकल ही आपको दिख रहा है। पर जैसे ही वो थोड़ा और कूल होगा, राइट, द कंपोजिशन विच इज चेंज फ्रॉम द परसेंटेज विल बी डिक्रीज फ्रॉम द 32 to 30, 35 to 32, राइट, द कंपोजिशंस एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द फेज विच इज चेंजेस ऑन द कूलिंग। जैसे ही उसका कूलिंग स्टार्ट होगा तो अब उसका जो है वो कंपोजिशंस जो है वो रिलेटिवली टेम्परेचर के साथ जो है वो उसका अमाउंट जो है वो चेंज होता जाएगा। नाउ द फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा विच इज इंक्रीज विच इज कॉन्स्टेंटली हियर, अब यहाँ पे जो है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस उसका स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब एक तरीके से पॉइंट बी टू सी के अंदर जाएंगे तो सी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक तरीके से उसका फेज जो है वो ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा। तो आप धीरे धीरे देख लिए, जैसे ही वो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो धीरे धीरे आप देख लिए, जो फर्स्ट ब्लू लाइन है ऊपर वाला,
उसके नीचे आएंगे तो एक एंड के ऊपर जो है वो परसेंटेज ऑफ उसके अंदर निकल हो गए विच इज़ द 32, और दूसरे एंड के ऊपर आप देख लीजिए परसेंटेज ऑफ निकल विच इज़ दी 46। फिर आप सेकेंड ब्लू लाइन के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे एक एंड के ऊपर जो उसके परसेंटेज ऑफ द निकल विच इज़ द 32, वाइल ऑन द सेकेंड एंड विच इज़ द परसेंटेज ऑफ द निकल विच इज़ दी 43, यहाँ पे थोड़े कम हुए। अब तीसरे लाइन के ऊपर आएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर राइट आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ दी लिक्विडियस लाइन के ऊपर आप एल जो लिखा है इन ब्रैकेट विच इज़ द 24 निकल उसके कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से, और जो आपका डी है राइट उसके ओपोनेंट वाला पॉइंट वहाँ पे एल विच इज़ दी 32 इन द निकल, यानी एक तरीके से जैसे उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके साथ उसके निकल के कंपोजिशंस हैं वो पूरे टोटली चेंज होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ नो कंपोजिशन अल्टरेशंस वंस इट इज़ रीचेस टू द पॉइंट डी। एक कंडीशंस के बाद जब वो डी के ऊपर पहुंच गया उसके बाद उसका कंपोजिशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका पूरा जो है वो एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड टू सॉलिड के अंदर हो चुका है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशंस डायग्राम। नाउ व्हाट इज द नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशंस कंडीशंस? सो इन प्रैक्टिकल situations the diffusion is not as slow as which is allow the readjustments in the diffusions while maintaining the equilibriums. So how it differ from the equilibrium cooling? The diffusion which is slow in the alpha phase जो है उसके अंदर जो है वो एक तरीके से diffusion जो है वो slow हो जाता है right. The composition which changes with the radial compositions and a greater proportions of the liquid which is the presence. Shift of the solidus line to the higher nickel contents to average compositions of the alpha. So now the slower the cooling rate and more rapid diffusion process which is smaller to displacements. The solidification which is complete at 1478 degree Fahrenheit instead of the 1400 and the 93 Fahrenheit with the 35 percentage of the average percentage of the nickel जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. Its consequences? No. The segregations which is occur where the concentrations gradients are established across the grains. ये जो segregations जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है? तो segregations वहीं पे होता है जहाँ पे concentrations of the gradients जहाँ पे जो है वो developed होते हैं. The formations of a core structures with the center rich in high melting elements where increase in the concentrations of the low melting point which is going on. The melting which is below the equilibrium melting temperature of the alloys is may happens. यहाँ पे alloys और pure metals का जो differences होता है इसके लिए ये चीज़ होने की main reason है. The loss in the mechanical integrities due to the thin liquid film that separates the grains. So now the intermediate phases and the reactions. Now what is the meaning of the intermediate phases and reactions? So the intermediate phases which is related as a pure ion on the heating undergoes the two changes in the crystal structure before the melting. जब वो melting होता है तो pure ion जो है वो दो reactions हमें देता है. At the room temperature it exists in the alpha ferrites up to 1674 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वहाँ पे पहला चेंज होता है which has a BCC crystal structures. At 1185 degree Fahrenheit it get polymorphically transformed into FCC austerite structures and it persists when it revert back to the BCC delta ferrite. At 7.6% of the carbon concentrations
cementite, which is the FeC3, is formed. The iron which is melted at the 200 and 2800 degree Fahrenheit. So this is the intermediate reactions of the coolings and heatings of the pure ions. Now अब किस चीज़ को जो है वो हमने अभी जो था वो हमने एक बाइनरी फेज डायग्राम को जो है वो समझने की कोशिश की थी. अब हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस यूनरी फेज डायग्राम होता क्या है. यानी यूनरी जो फेज डायग्राम है वो बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिसके अंदर जो है वो एक ही कंपोनेंट्स हो, राइट. जिस चीज़ के अंदर एक कंपोनेंट्स हो और वो जो डायग्राम जो है वो दो पैरामीटर को लेके, जैसे आपका प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया. अब यहाँ पे मैंने कंपोजिशंस को फिक्स कर दिया है और दो पैरामीटर्स जो है वो आपके वेरी होते जाएंगे. तो जो उसके साथ जो स्टडी किया जा सकता है उसको यूनरी फेज डायग्राम जो है वो बोला जाता है. इफ़ अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन कंपोनेंट, एज एन एग्जांपल ऑफ द वाटर. अगर सिस्टम के अंदर एक ही कंपोनेंट है, जैसे अपना वाटर हो गया, इन इक्विलिब्रियम ऑफ द फेजेस which is exist is depicted by the unary phase diagram, right. उसको जो है वो unary phase diagram जो है वो बोला जा सकता है. the component which is may exist in the different form, इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट जो है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जो है वो फॉर्म हो सकते, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं. दस द वेरिएबल्स आर द टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर्स. द कंपोनेंट इज मे एग्जिस्ट, इसके कंपोनेंट्स हैं वो कुछ बाहर निकल सकते हैं. कहाँ पे? इन द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर. दस द वेरिएबल्स आर दी प्रेशर्स एंड द टेम्परेचर. इसलिए जो है हमने अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं ना. लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है, गैस हो सकता है, आइस हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा. तो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जो है वो उसके कंपोनेंट्स जो हमें मिल सकते हैं. इसलिए जो है वो हमने दो कंडीशंस को स्टडी करने की कोशिश, दो वेरिएबल के साथ उसको स्टडी करने की कोशिश की है. तो उसको जो है वो यूनरी फेज डायग्राम जो है वो हमें बोला जाता है. सो यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है कि मेरे सामने एक एग्जांपल है विच इज़ द एग्जांपल ऑफ द वाटर, राइट. वाटर को जो जैसे ही मैंने टेम्परेचर और यहाँ पे यूनिट फेज डायग्राम मैंने दो एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश की है. वहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मैंने प्रेशर कंडीशंस को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने टेम्परेचर कंडीशंस को प्लॉट किया है. यहाँ पे जैसे ही जो है वो टेम्परेचर को मैं जैसे इंक्रीज़ करता जाऊँगा और साथ में प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता जाऊँगा, तो आप यहाँ पे एक देख लीजिए कि धीरे धीरे जो है वो जैसे ही वो जो वाटर है वो टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट के ऊपर उसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा. अब क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वहाँ पे जो है वो आप फेज डायग्राम हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो एक कंडीशन के ऊपर जैसे ही वो मैं टेम्परेचर उसका बढ़ाता जाऊँगा तो टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा. एक कंडीशन आएगी कि वो अब इतना हीट हो चुका है कि इसके अंदर से वेपर होके वो इवेपोरेट होने लगा है. यानी उसका फेज ट्रांसफॉर्म, लिक्विड टू टोटली उसका वेपराइजेशन हो गया. अब वो आपको मिल ही नहीं सकता. तो एक फेज हमें वो मिला. एक कंडीशंस के ऊपर जो है वो उस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के ऊपर वो लिक्विड कंडीशंस के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर था. अब इसका रिवर्स हम लोग करें तो वो जो है वो वेपर को जो है वो हमने इकट्ठा करके हमने उसको एक कंटेनर के अंदर उसको अब कूल करने की कोशिश की है. तो कूल करने की कोशिश करते जाएंगे तो वो वेपर में से पहले लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशंस होगा और लिक्विड में से एक कंडीशन के बाद और अगर उस लिक्विड को हम लोग कूल करने की कोशिश करेंगे तो वो लिक्विड जो है वो लिक्विडियस कंडीशंस के बाद जो है वो एक सॉलिडियस कंडीशंस यानी एक आइस के फॉर्म में जो है वो फिक्स होने की कोशिश करेगा. तो उसका जो है अब liquid plus solids, and now the solid conditions or the phase transformations which is occur for the one element with the example of the water which is called as a unary phase diagram. अब इस चीज़ को जो है वो unary phase diagram जो है वो बोला जाता है.
जबकि हमने बाइनरी फेज डायग्राम तो ऑलरेडी हमने कोशिश की है इसको समझने की। बाइनरी के अंदर क्या चीज़ थी, इफ़ अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, इक्विलिब्रियम of the phases will be exist is depicted by the binary phase diagram, right, जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो गए। द मोस्ट सिस्टम द प्रेशर इज बीइंग एज अ कांस्टेंट, वहाँ पे प्रेशर जो है वो सारे सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रखा जा सकता है, और द वेरिएबल कंडीशंस के ऊपर, वेरिएबल पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो हम लोग टेम्परेचर और उसके कंपोजिशंस को लेते हैं। द टू कंपोनेंट कैन बी आइदर बी द टू मेटल विच इज़ द कॉपर एंड निकल, or a metal or its compounds which is the ions and the iron oxides, then the two compounds which is the aluminum oxides and the silicon oxides। ये जो है वो सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। the two systems the two component systems are classified which is based on the extents of the mutual solid solubilities। the first which is a completely soluble in both liquids and सॉलिड फेजेस, यानी बाइनरी जो फेज डायग्राम है वो क्लासिफिकेशन उसके सिस्टम जो है वो विच इज़ द एमोर्फस सिस्टम। यानी एमोर्फस सिस्टम किसको बोला जाता है, एमोर्फस सिस्टम जो है उसको बोला जा सकता है जहाँ पे ऐसी कंडीशन, ऐसे सिस्टम जो एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल हो, राइट, लिक्विड कंडीशंस के अंदर भी और सॉलिडस कंडीशंस के अंदर भी एक दूसरे में ईजिली जो है वो सॉल्युबल हो, उसको एमोर्फस सिस्टम बोला जा सकता है। और सेकेंड कंडीशंस जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल इन द लिक्विड फेज वेयर सॉल्युबिलिटी इज लिमिटेड इन टू दी सॉलिड कंडीशंस। एक कंडीशंस, सेकेंड कंडीशन में कैसी कंडीशंस है कि लिक्विड कंडीशंस में तो एक दूसरे के साथ जो है वो सॉल्युबल है, पर सॉलिड कंडीशंस के साथ जहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल है, पर जो उसका सेकेंड कंडीशन है कि सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन से एमोर्फस कंडीशंस और आइसोमोर्फस सिस्टम जो है उसको बोला जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूनरी फेज डायग्राम्स एंड द बाइनरी फेज डायग्राम। सो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने काफ़ी सारी चीज़ जो है वो समझने की कोशिश की है। आज के लेक्चर के अंदर हमने नया ही चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ द फेज एंड द फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिसके अंदर उसका फेज डायग्राम किसको बोलते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस क्या है। क्लासिफिकेशंस के अंदर यूनरी फेज डायग्राम और बाइनरी फेज डायग्राम को हमने स्टडी करने की कोशिश की है। अब कल के लेक्चर के अंदर जो है वो इसके डिफरेंट रिएक्शंस जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये टॉपिक के अंदर आपको किसी भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको वहाँ पे लिखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।